नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट सेशन में हमने डी मोइरेस थ्योरम, उसका प्रूफ और एप्लीकेशंस ऑफ डीएमटी ये डिस्कस किए थे। एंड वी आर यूजिंग द बुक बाय हिमालय पब्लिकेशन बीएससी सेमेस्टर 1 एज पर न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। यू कैन ऑल्सो यूज दिस बुक. Today we are going to continue the topic with Euler's formula. This is very important result for solving examples on complex number. So let us see. The formula e power I theta equal to cos theta plus I sin theta. अभी तक के DMT में हम cos theta plus I sin theta ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे. The same expression is e power I theta. And it is called Euler's formula or Euler's identity. Proof for this is as below. From elementary calculus we have a few series for e power x, series for cos x and series for sin x. Series for e power x is 1 plus x upon 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x power 4 by 4 factorial up to infinite terms. This is infinite series. Series for cos x is terms having even powers and alternate sign. So it is 1 can be treated as x power 0 upon 0 factorial, x square by 2 factorial, x power 4 by 4 factorial, etc. with alternate sign. First is positive, then negative, then positive, then negative, and so on. Series of sign x contain odd powers of x, that is x upon 1 factorial, x cube upon 3 factorial, x power 5 upon 5 factorial, etc. with alternate sign. First is positive, second term is negative, then positive, negative, and so on. So these are standard series expansions of e power x exponential function, cosine function and sine function. एक बात हम यहाँ से कह सकते हैं कि cos x is even function because it contain all even powers of x, and sin x is odd function as it contain odd powers of x. Now we want e power I theta, so put x equal to I theta in 1. For x equal to I theta in 1, we get e power I theta equal to 1 as it is. अब जहाँ जहाँ x है, वहाँ वहाँ I theta पुट करते चले जाते, तो I theta अपॉन 1 फैक्टोरियल, I theta का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, I theta का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, I theta power 4 upon 4 factorial, etc. Simplify it using the results for I square, I cube, I power 4, etc. I is under root minus 1. I is under root minus 1. Let us see. I is equal to under root minus 1. So I square is equal to minus 1. I cube is equal to, दोनों तरफ I मल्टीप्लाई किया I स्क्वायर की टर्म में, तो वी गेट I क्यूब इज इक्वल टू माइनस I, फिर I मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट I पावर 4 इज इक्वल टू माइनस I स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस 1, सो I पावर 4 इज 1, एक्सेट्रा. यूज ऑल दीज पावर्स ऑफ I to simplify this expression. It becomes 1 अपनी जगह पर है प्लस I थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल. इट इज I स्क्वायर थीटा स्क्वायर, I स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये आ गया माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. I क्यूब थीटा क्यूब, I क्यूब इज माइनस I, तो इट इज माइनस I थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. I पावर 4 थीटा पावर 4, I पावर 4 इज प्लस 1, तो इट इज प्लस थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अब यहाँ पर जो भी टर्म्स विदाउट I है उनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और टर्म्स ऑफ I को I कॉमन लेके एक साथ कलेक्ट करते हैं. So we get two terms, one without I and one with I.
here it is. Terms without I are 1 minus theta square by 2 factorial plus theta power 4 by 4 factorial etc. एंड टर्म्स विथ I, तो उसमें I कॉमन ले लिए, ये प्लस I कॉमन ले लिए, बचा फिर थीटा बाय 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल. नेक्स्ट टर्म विल बी plus theta power 5 by 5 factorial. Next term will be negative etc. Now compare series 2 and series 3 with these two brackets. So ये जो है फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्सेट्रा, ये इसके समान दिख रहा है, x की प्लेस पे थीटा, सो इट बिकम्स कॉस थीटा. I अपनी जगह है और जो सेकेंड ब्रैकेट है, ये सेकेंड ब्रैकेट सीरीज 3 को यदि ऑब्जर्व करें तो x की प्लेस में थीटा दिख रहा है, तो इट इज साइन थीटा. लेफ्ट हैंड साइड में था ई पावर आई थीटा, तो हेंस ई पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यूजिंग सीरीज 2 and 3 फॉर कोसाइन एंड साइन एक्सपांशंस. तो अभी तक जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर x और y के फॉर्म में लिखते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, नाउ इट कैन बी रिटन इन पोलर फॉर्म एज this is complex number z is equal to x plus iy. In polar form, that is in terms of r and theta, it can be written as x की प्लेस पे r cos theta, y की प्लेस पे r sin theta. स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो r कॉमन आ गया, cos theta plus i sin theta, and this cos theta plus i sin theta is now e power i theta by using Euler's identity. So z is equal to r e power i theta. दिस इज पोलर फॉर्म. शॉर्ट में हो गया, वो जो बड़ा सब पोलर फॉर्म था z इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, रिड्यूस होकर मिल गया z इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा. अब ये फॉर्मूला यदि हम यूज करें डीएमटी में, डी मोइवस थ्योरम में, तो डी मोइवस थ्योरम से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. तो जो लेफ्ट साइड था वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसकी जगह लिखा जा सकता है ई पावर आई थीटा का पावर n है, और राइट साइड में cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा था, दैट मीन्स एंगल देयर इज n थीटा. तो बाय यूजिंग आयलर्स फॉर्मूला इट कैन बी रिटन एज ई पावर आई एन थीटा. और ये पूरे को यदि हम एक साथ देखें तो ये हमको लॉ ऑफ इंडाइसेस सेटिस्फाई कराते दिखता है. ई पावर आई थीटा का पावर n इज नथिंग बट ई पावर आई एन थीटा. मल्टीप्लीकेशन में है, यू कैन से ई पावर एन आई थीटा और आई थीटा एन और आई एन थीटा. मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, इवन एसोसिएटिव ऑल्सो. सो दिस satisfy rules of law of indices. Okay. Further, if you replace I by minus sign, I by minus I, so it will be e power minus I theta, और फिर उसकी हेल्प से कुछ हमको रिजल्ट्स मिलेंगे. दिस इज सेकेंड रिमार्क. Replacing I by minus I in Euler's formula, so we get e power minus I theta is equal to cos theta minus I sin theta. So we have two identities, basically only one identity e power I theta. चलो इसको भी हम सेपरेट यदि मान ले, e power minus I theta is cos theta minus I sin theta. तो using these two identity we have some results. Number one, cos theta is equal to e power I theta minus e power I theta plus e power minus I theta upon 2. Sin theta is equal to e power I theta minus e power minus I theta upon 2, and e power I theta is equal to e power I times theta plus 2 के पाए. पीरियोडिसिटी डिसाइड होगी यहाँ से. बाय आयलर्स फॉर्मूला वी हैव e पावर I theta इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. इसको हम सिस थीटा भी लिख सकते हैं, एंड ई पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. इसको सिस थीटा नहीं लिख सकते. सिस थीटा के लिए
इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी पॉजिटिव. जो रिजल्ट्स हमको दिख रहे हैं उनमें दोनों में एक जगह एडिशन है, एक जगह सब्ट्रैक्शन है. तो ये 1 और 2 को ऐड कर दें. तो ऐड करने पर हमको लेफ्ट साइड में मिलेगा ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा, और राइट साइड में रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए. तो वी गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2. दिस कैन बी ट्रीटेड एज डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ आइलर्स फॉर्मूला. अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा को हमने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज इन टर्म्स ऑफ आइलर्स फॉर्मूला. ऐड करने से ये मिल गया, सब्ट्रैक्ट करने से सेकंड रिजल्ट मिल जाएगा. सिंपल सा है वो. सब्ट्रैक्ट 2 from 1, that is 1 minus 2 imply e power I theta minus e power minus I theta. cos theta कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन के 2 times I sin theta. 2i को डिवाइड कर दो तो वी गेट दिस एज द रिजल्ट. sin theta is equal to e power I theta minus e power minus I theta upon 2i. So this is definition of sin theta, circular function sin theta in terms of Euler's identity. Right angle triangle के टर्म में it was opposite upon hypotenuse. ठीक है. Now to prove third result, we know that sin function and cosine functions are periodic functions with period 2 pi. हर 2 pi इंटरवल के बाद वो रिपीट होते चले जाते हैं. तो वी कैन राइट ई पावर, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं. वी कैन राइट ई पावर आई टाइम्स 1 मिनट ई पावर आई टाइम्स थीटा प्लस 2 के पाए is cos theta plus 2 k pi plus I sin theta plus 2 k pi. Cos function sin function are periodic function with period 2 pi. तो हर 2 pi इंटरवल के बाद रिपीट होते जाएंगे. cos theta plus 2 k pi is cos theta. sin theta plus 2 k pi is sin theta for any integer k, positive, negative or even 0. So cos theta plus I sin theta is nothing but e power I theta. Hence the result e power I theta is e power I times theta plus 2 k pi for any integer k. This shows periodicity. Using Euler's identities जो हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए थे DMT के, वो और सिंपल हो जाते हैं. Evaluate, let us see the example. Evaluate 3 times e power I pi by 6, 2 times e power minus 5 I pi by 4, 6 times e power 5 I times pi by 3 upon 4 e power 2 times I pi by 3 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, सब मल्टीप्लाई कर लो पहले तो. नंबर 6 2 ज़ा 12 3 ज़ा 36, और e के पावर में आए सभी जगह है तो e के पावर में आए कॉमन ले लेते, पावर स्क्वायर कर देते लॉ ऑफ इंडाइसिस की हेल्प से. तो पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 3, यहाँ ये बन गया ये ब्रैकेट, एंड डिनोमिनेटर इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16. ई इसके भी पावर में 2 आ जाएगा तो ई पावर 4i पाई बाय 3. अब ये ऊपर भी ई के पावर में टर्म है, नीचे भी ई के पावर में टर्म है, कलेक्ट कर लो ऊपर ले जाके, और ये 36/16 डिवाइड होता है. 4 4 ज़ा 4 9 ज़ा तो 9/4 ई पावर आई, इतना तो था पहले से, पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 3. ये नीचे से 4 पाई बाय 3 ऊपर जाएगा तो माइनस होके चले जाएगा, तो माइनस 4 पाई बाय 3, पाई को कॉमन रख दिया है. अभी जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट है वो -3/4 आते दिख रहा है. -3/4 पहले से आई और पाई है वहाँ, तो इट इज़ 9/4 ई पावर माइनस आई टाइम्स ब्रैकेट में 3π/4 और -3π/4 बोल दो, तो माइनस होने की वजह से इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस हो जाएगा. एंगल इज 3π/4, cos 3π/4 माइनस आई साइन 3π/4. नाउ 3π/4 π/4 मीन्स 45 डिग्री का 3 टाइम्स 90 प्लस
45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। 90 प्लस 45 डिग्री का फॉर्मूला कॉस 90 प्लस 45 का हो या फिर कॉस 180 माइनस 45 का हो, वो अप्लाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू। कॉस वैल्यू इज -1/√2, साइन वैल्यू इज 1/√2। आई अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है, दोनों साइन नेगेटिव होने से उसको बाहर ले लिया और √2 को भी बाहर ले लिया कॉमन, तो -9/4√2 इंटू 1 प्लस आई। जस्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस के समान प्रॉब्लम को ट्रीट करके सॉल्व किया जा सकता है। एंड वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। Another type of problems, prove the identities cos cube theta equal to 3/4 sin theta minus 1/4 sin 3 theta। मतलब पावर्स ऑफ साइन या कॉस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल ऑफ साइन और कॉस। इसके पहले हमने साइन 3 थीटा, कॉस 4 थीटा ऐसे एक्सपांशंस देखे थे इन पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस। अब ये रिवर्स प्रोसेस है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला है ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i का पावर 3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेपरेट करो, ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन पावर 3 अपॉन 2i का क्यूब, दैट इज 8i क्यूब। नाउ i क्यूब इज -1, सॉरी आई क्यूब इज आई स्क्वायर इज -1, उसमें आई मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी -i, तो इट इज -1/8 अपनी जगह पर है, माइनस आई क्यूब के लिए आ गया ये माइनस और ये आई, एंड दिस इज ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा का क्यूब। अप्लाई द फॉर्मूला फॉर क्यूब। अब बीच में माइनस साइन है तो अल्टरनेट साइन चलेंगे। फर्स्ट इज ए क्यूब माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, पहले साइन की बात कर ली। अब ए क्यूब है, नेक्स्ट टर्म में 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी, ए का एक पावर कम किया और बी को इंट्रोड्यूस किया ई पावर आई थीटा, फिर 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर, ए से एक पावर और लेके बी को दे दिया वो, और फिर नेक्स्ट टर्म में पूरे पावर बी के बी क्यूब। साइन ऑल्टरनेट है। इसका लॉ ऑफ इंडाइसिस से सिंप्लीफिकेशन कर लो, ई पावर 3i थीटा माइनस यहाँ ई पावर i2 थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा प्लस 3 ई पावर आई थीटा ई पावर -2i थीटा, ये टर्म यहाँ दिख रही है, माइनस ई पावर -3i साइन थीटा, -3i थीटा साइन थीटा अभी नहीं, बाद में आएगा। इतना होने के बाद यहाँ जो सेम एंगल वाली टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लेते हैं, ई पावर 3i थीटा और ये ई पावर -3i थीटा एक साथ ला लिए इनको। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन 2i थीटा माइनस आई थीटा इज आई थीटा माइनस 2i थीटा इज माइनस आई थीटा, तो यहाँ से भी कंबाइन ले लेते हैं, -3 कॉमन लेके ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये साइन थीटा के टर्म में दिखते थे हमको, लेकिन इसके साथ में डिनोमिनेटर में 2i चाहिए, तो वो 2i को यहाँ से शिफ्ट करके दे देते। 8i को हम लिखते 4 इंटू 2i, तो 4 यहाँ बने रहने दो और 2i को यहाँ डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर लिया। तो नाउ दिस फर्स्ट टर्म, यहाँ पर i के साथ में 3 थीटा है, तो इट इज़ साइन 3 थीटा, -3 अपनी जगह पर है और ये बन गया साइन थीटा। सामने -1/4 है, ब्रैकेट ओपन कर दो तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन गई, उसको पहले लिखा 3/4 साइन थीटा -1/4 साइन 3 थीटा। कैलकुलेशन पार्ट, जैसे अभी क्यूब के लिए एक्सपांड किया, इसी तरह पावर 4 होगा, बाइनोमियल एक्सपांशन से उसको सिंप्लीफाई किया जा सकेगा। सेम लाइंस पर यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई a plus b का पावर 4 and simplify it, you will get desired result. Next, if z1
दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म, z1 इज इक्वल टू r1 ई पावर आई थीटा 1 एंड z2 इज इक्वल टू r2 ई पावर आई थीटा 2. फाइंड प्रोडक्ट z1 z2 एंड quotient z1 by z2. Also prove that argument of product z1 z2 is equal to argument z1 plus argument z2 and argument of quotient z1 by z2 is argument z1 minus argument z2 by stating appropriate conditions of validity. Okay, so let us see the solution. We are given that z1 is r1 I theta 1, z2 is r2 I theta 2. तो इसको cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में, क्योंकि हमको आर्गूमेंट की बात करनी है तो फुल फॉर्म दे दें तो z1 इज इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1 और सिस थीटा 1 कह सकते हैं इसको, एंड z2 इज इक्वल टू r2 सिस थीटा 2 cos थीटा 2 प्लस आई sin थीटा 2. तो मॉडुलस ऑफ z1 इज r1, मॉडुलस ऑफ z2 इज r2, आर्गुमेंट ऑफ z1, आर्गुमेंट कहो एम्पलीट्यूड कहो थीटा 1, आर्गुमेंट ऑफ z2 इज थीटा 2. ये यहाँ से यही फॉर्म से दिखता है, थीटा 1 r1 इज मॉडुलस और थीटा 1 इज आर्गुमेंट. नाउ प्रोडक्ट z1 इंटू z2 कर लो, प्रोडक्ट z1 इंटू z2 r1 आई थीटा 1 इंटू r2 ई पावर आई थीटा 2, r1 इंटू r2 एक साथ हो गया, एक्सपोनेंशियल के जो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ई पावर आई टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2. तो r1 इंटू r2 एज इट इज. अब एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो दिस विल बी सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2. तो ये हो गया प्रोडक्ट का रिजल्ट. नाउ z1 अपॉन z2, r1 ई पावर आई थीटा 1 अपॉन r2 ई पावर आई थीटा 2, r1 अपॉन r2 ई पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2. एंगल इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2, दैट इज कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2. अब ये प्रोडक्ट का इस प्रोडक्ट का यदि हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ z1 z2 इज दिस वन, ये r1 r2, r1 इज नथिंग बट मॉड ऑफ z1, r2 इज नथिंग बट मॉड ऑफ z2. दैट मीन्स आर्गुमेंट एंड इसको भी कर लेते फिर बाद में दोनों को एक साथ मेंशन करेंगे. z1 बाय z2 का मॉडुलस, यहाँ मॉडुलस लगाना होता, मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू ये r1 बाय r2, r1 बाय r2, r1 इज मॉडुलस ऑफ z1, r2 इज मॉडुलस ऑफ z2. तो ये तो हो गया मॉडुलस की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात. नाउ आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, ये एंगल रहेगा, एंगल इज द आर्गुमेंट, ये है आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2. थीटा 1 था ये आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड थीटा 2 था आर्गुमेंट ऑफ z2. तो आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 यही चाहिए था, मिल गया. सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो z1 अपॉन z2 में एंगल है थीटा 1 माइनस थीटा 2. थीटा 1 था आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस थीटा 2 था आर्गुमेंट ऑफ z2. इन दिस वे द रिजल्ट फॉलोज. Right? Since there are many possible values of theta 1 and theta 2, so we can say that results 1 and 2 hold for some value theta 1 and theta 2. ये theta 1 and theta 2 के लिए results are true. Geometrical interpretation, given a complex number, interpret geometrically z e power I alpha where z is real. गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिख नहीं रहा है, इट शुड बी z, कॉम्प्लेक्स नंबर z, यहाँ पर z चाहिए. गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकली z इंटू ई पावर आई अल्फा वेयर अल्फा इज रियल. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू r ई पावर आई थीटा.
and its representation is say OP, modulus is R, absolute value is R, and direction is theta, right? By vector OP with magnitude R and makes angle theta with positive x-axis. Now Z into e power I alpha, Z है R e power I theta into e power I alpha, तो बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगे, R e पावर I कॉमन, थीटा प्लस अल्फा। अब मैग्नीट्यूड तो सेम है, थीटा प्लस अल्फा, यानी ये ऑलरेडी थीटा था, इतना एंगल थीटा था। अब ये थीटा को कुछ एंगल जो भी अल्फा होगा, मान लो ये अल्फा है, तो दोनों को मिलाकर ये जो पोजीशन तैयार हो रही है, ये पोजीशन हो गई थीटा प्लस अल्फा। तो अब जो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आर था उतना डिस्टेंस, बट नाउ एंगल इज थीटा प्लस अल्फा। दिस इज वेक्टर ओ क्यू विथ मैग्नीट्यूड आर एंड मेकिंग एंगल थीटा प्लस अल्फा एज शोन इन फिगर। दैट मीन्स क्या हुआ, ऑलरेडी जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z, यदि उस पर हमने कोई एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाई किया e पावर i अल्फा, तो वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ एंगल अल्फा से। ये पोजीशन OP चेंजेस टू OQ वेयर दिस एंगल POQ इज अल्फा। So conclusion is multiplication of vector z by e power I alpha rotates z counter clockwise through an angle alpha. Now next article will be roots of complex number, इसको हम सेपरेट सेशन में लेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। आज के लिए यहाँ रुकते हैं, बाय बाय, जय गणेश।